It's a wound dressing station. So I'm closing the door to maintain the privacy. I can see the scene is safe to proceed. Hi, my name is Vaishali. I'm just a nurse looking after you. How are you? I'm not fine, nurse. I'm having a pain at my wound area. Oh, I'm so sorry for that. Can you please locate your wound for me? Yeah, I can see its wound here. Well, I can see this wound is like very small in size, and it has some serous drainage. Okay, and it is little bit purplish in color because of maybe because of bruise. Okay, and I cannot see any slough or ishihar, and even moreover I'm not also able to see any kind of undermining or turning sign. It's a very small tear kind of wound. Okay, don't worry, I will clean it, I will put dressing on it, and then after you're gonna feel much better. The pain will not be, you will not be feel any pain after that. Is that okay to you? All right. So here is your call bell. If you need anything, please let me know. But before leaving the station, let me check your ID. So can you please confirm your name? My name is Smantha. Smantha. Your date of birth, please. 2222222222. Your AMA number is 42456. Yeah, that matches with my record. Thank you so much. Well, Samantha, do you have any allergies? Yes, I'm allergic to adhesives. Oh, okay. I will make sure that I will not use any kind of adhesives, okay, during the procedure. I hope it is okay to you. Yeah, it is okay to me. Well, Samantha, if you feel pain throughout the procedure, please let me know. I will stop the procedure because I will not proceed if you will be in pain. Is that okay to you? Okay. And when did you had your pain medications? Half an hour ago. Yeah, it will take some more time to give the effect of the drug. So please, if you feel pain, let me know. I will stop the procedure. Okay. All right. So doing my hand hygiene. Going to the preparation area, I'm taking my dressing set. My trolley is neat and clean in the last 24 hours. My dressing set is within the expiry. My normal saline packet or pouch is within expiry. I'm going to take gauze pad, a dressing of gauze pad because my patient is allergic with the adhesive. So I'm not going to use any adhesive kind of dressing. So I'm going to use the gauze pad, bandage. Yeah, good to go. And the bin is already attached to the trolley. Yeah, that's all. I'm ready to go. And bluey also. Bluey is a cotton kapada. It's a sheet. Bluey. Okay, let's go to the patient bedside. Doing my hand. Hi, Samantha. I'm back with my articles. I hope you're doing great, right? Okay. So well, Samantha, take a bluey, putting under your feet. Okay. So Samantha, I will refrain myself from talking. Okay. Because this field is trial for me, but you can speak. You can tell me whenever you have pain. I will stop the procedure. Okay, don't worry about that. So shall I start? All right. So I'm doing my hand hygiene. अब मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ because मुझे चुपचाप अपना काम करना है. I need to do the things. Okay, and that is the main station that I can't tell you, but I will teach you. But let me do it. मैं बोल रही हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए, बट आइडली मैं बोल नहीं रही थी. ओके, मैं बस इमेजिन कर रही हूँ कि मैं ऐसा ऐसा कर रही हूँ, तो मैं चुप हूँ बिल्कुल. बस आपको बताने के लिए मैं बोल रही हूँ. सो दिस इज माई ट्रॉली. ओके, तो मैंने सबसे पहले हैंड हाइजीन किया, साइड में किया. हियर इज माई पेशेंट, हियर इज माई ट्रॉली इन फ्रंट ऑफ मी, एंड आई एम डूइंग माई हैंड हाइजीन ऑपोजिट, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे हैंड हाइजीन के छींटे ड्रॉपलेट्स यहाँ वहां स्पिल हो. तो मैं यहाँ हैंड हाइजीन कर रही हूँ. सबसे पहले मैंने ड्रेसिंग सेट उठाया, उसको फाड़ा, पकड़ा, ट्रॉली पे डाला. जो जो बचा हुआ कागज है, लिफाफा है, उसको पकड़ के कहाँ डाल दिया? डस्टबिन में. नेक्स्ट, हैंड हाइजीन. अब पकड़ा और इसको खोल दिया, पूरा का पूरा खोल दिया. खोलने के बाद ये कैसा दिखने वाला है? लेट मी शो यू. खोला, सबसे पहले मैंने पीले रंग का फोर्सेप उठाया, सॉरी, सबसे पहले मैंने खोला और मुझे क्या दिखा? पीला फोर्सेप. पीला फोर्सेप मैंने हैंड हाइजीन किया. पीला फोर्सेप मेरे सामने दिख रहा है मुझे. मैंने पीला फोर्सेप उठाया और ब्लू फोर्सेप को टेढ़ा किया. जैसे आप देख रहे हैं, जिस सेटिंग जो आप देख रहे हो, इसी हिसाब से मैंने सेट कर दिया सब कुछ. उस येलो फोर्सेप से मैंने सब कुछ सेट कर दिया. एक एक गॉज पीस अलग कर दिया, एक एक चीज मैंने अलग कर दी. जो आपको दिख रहा है यही ड्रेसिंग सेट का सामान होता है, और मैंने ये सब कुछ अलग कर दिया. अब येलो फोर्सेप मैंने बाहर निकाल के डिस्कार्ड कर दिया. नेक्स्ट, लेट मी शो यू. सो सबसे पहले मैंने येलो फोर्सेप लिया और इसको मैंने यहाँ रखा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ व्हाइट कलर का ये होता है. सबसे पहले ये होता है, इसके ऊपर ये होता है, यानी कि नंबर 1. इसके बाद ये दिखेगा,
इसके बाद ये दिखेंगे, इसके बाद ये दिखेंगे, इसके बाद ये दिखेंगे। तो इसके ऊपर ये सब कुछ पैक है और ये पूरा बंद है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्लीज आपको मुझे हाँ करना पड़ेगा ताकि मुझे थोड़ा लग सके कि आपको समझ में आ रहा है। मैं दिखाऊंगी अभी आपको थोड़ी देर में। सो दिस इज द, जैसे मैंने खोला ये डब्बा मुझे दिखा, इसके ऊपर जो था वो येलो फोर्सअप पड़ा था, उसके नीचे ये पड़ा था, उसके नीचे ये दो पड़े थे, उसके नीचे ये पड़े थे और उसके नीचे ये पड़े थे। सबसे पहले मैंने येलो फोर्सअप को उठाया, इस कपड़े को मैंने यहाँ पे रखा, इनको मैंने यहाँ पे सजा दिया। इन कॉटन बॉल्स को मैं छेड़ नहीं रही हूँ, ये यहीं पड़े हुए हैं, ये यहीं पड़े हुए हैं। बस मैंने इन दोनों को यहाँ रखा और इनको मैंने ये अलग अलग कर दी, इनको नहीं छेड़ रही हूँ, इनको अलग अलग कर दिया। चलो डन। येलो फोर्सअप अब मैंने फील्ड से बाहर निकाला, इसके ऊपर से नहीं क्रॉस किया मैंने, साइड से क्रॉस कर कर मैंने यहाँ डस्टबिन टंगा हुआ है यहाँ डाल दिया। नंबर 2 स्टेप, हैंड हाइजीन। आई एम डूइंग माई हैंड हाइजीन। नाउ व्हाट नेक्स्ट? नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द ब्लू फोर्सअप। तो मैंने दोनों के दोनों ब्लू फोर्सअप उठाए, उठाने के बाद मैंने क्या किया, हाँ एक सेकेंड और, जस्ट गाइस गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी गो एंड ग्रैब ड्रेसिंग सेट फॉर यू। ऑल राइट, सो आई होप आप लोग मुझे देख पा रहे हो। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? Yes, Kusum? Perfect. So this is a dressing set. This is the main packaging. Okay, this is the main packaging. So here is my trolley and here is my patient. Okay, so this is my dressing set. मैंने नीचे से उठाया, खोला और मैंने कर दिया स्कूप। ये मेरा टेबल है। ओके, दिस इज माय टेबल। एंड देन आफ्टर डिस्कार्ड। अब क्या करना है अगला स्टेप? हैंड हाइजीन। तो ये यहीं पे टेबल पे है, मैंने अपना हैंड हाइजीन किया और उसके बाद मैंने इसको पकड़ा और ऐसे करके खोला, यू नो, जस्ट लाइक दिस। सो जब आप इसे ऐसे खोलेंगे, जब आप इसे ऐसे खोलेंगे, क्या दिखा सबसे पहले कुसुम? गाइस व्हाट डू यू सी? एग्जैक्टली, येलो फोर्सअप। तो सबसे पहले हमने लिया येलो फोर्सअप। येलो फोर्सअप, अब इसको देखते क्या करना है? हैंड हाइजीन। सो मैंने इसे देखा और सबसे पहले हैंड हाइजीन किया, यहाँ पे हैंड हाइजीन। देन आफ्टर मैंने इसे उठाया, उठाने के बाद इसके अंदर आप देख सकते हो ग्रिप बने हुए हैं, यू नो, यू कैन सी इन द ग्रिप। आप इसको रिकॉर्डेड लेक्चर में आप बहुत अच्छे से देख पाओगे क्योंकि मैं बिल्कुल सामने खड़ी हूँ, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। सो दिस इज समथिंग, सो येलो फोर्सअप। ओके, नाउ यू विल टेक इट आउट, पुट इट, जहां पे वो रखा हुआ है ना, यहाँ रख दिया, यानी कि यहाँ पर, यू नो, यहाँ। ओके, यहाँ रख दिया। ब्लू फोर्सअप यहाँ रख दिया। ओके, तो यहाँ रख, कहाँ रख दिया मैंने? यहाँ, यहाँ रख दिया। ओके, सो हियर अनदर येलो ब्लू फोर्सअप यहाँ रख दिया, यू नो, साइड में, साइड में। ओके, नाउ गॉच पीसेस, द वन ऊपर यहाँ रख दिया, जहां पे दिख रहे हैं आपको ये गॉच पीस, यहाँ रख दिए। एंड देन 2 एंड देन 3, डन। अब क्या करना है? सीधा निकल के यहाँ से साइड से डिस्कार्ड, डन। अब ये सब कुछ मेरे ट्रे पे आ चुका है, मेरे जो सामने ट्रे है, ट्रॉली है, उस पे सब कुछ आ चुका है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? ओके, सो आई विल टेक, व्हाट आई विल डू नेक्स्ट, हैंड हाइजीन। क्योंकि अब मैं क्या उठाने वाली हूँ? ब्लू फोर्सअप। तो आपको क्या लगता है, एक बार ब्लू फोर्सअप उठाने के बाद, अगर एक बार आपने ब्लू फोर्सअप उठा लिया, हिमांशु व्हाट यू थिंक, आप कुछ और छू सकते हो? एग्जैक्टली आप अपने हाथों से बिल्कुल नहीं छू सकते, ये पूरी की पूरी फील्ड जो है वो स्ट्राइल है। तो यहाँ पर मैं बचने के लिए क्या करती हूँ, क्योंकि मैं फोर्सएप को पकड़ने के बाद कुछ रख ही नहीं पाऊंगी, तो अब मैं क्या करूंगी, नॉर्मल सा लाइन नीचे से उठाऊंगी, उसको तोड़ूंगी, और ये जो जगह आप देख रहे हैं, द प्लेस, सॉरी दिस प्लेस, इट्स एम्प्टी नाउ, राइट, इट्स एम्प्टी। इसमें बस 3 गॉज पड़े हुए हैं, बचे हुए गॉज।
बचे हुए गॉज पड़े हैं। कई बार ये लोग ना इनको ऐसा वो भी देते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना ये राउंड स्वैप्स, कई बार ये स्वैप्स भी दे देते हैं। तो स्वैप्स कहाँ होते हैं? साइड में, यहाँ पे रखे हुए होते हैं स्वैप्स। तो मुझे छेड़खानी करने की, मुझे स्वैप्स बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं एनएस डालने वाली हूँ वो मैं यहाँ डालने वाली हूँ। इज इट क्लियर एवरीवन? So I took the NS, open it and pour it. कहाँ pour किया? इसके अंदर pour किया, here. तो यहाँ पे मैंने pour किया। pour करने के बाद discard किया, बाहर निकाला, discard कर दिया। Now what next? Hand hygiene. Hand hygiene. Now dressing. तो अब मैंने क्या किया? मुझे पता है गॉज पैड लगाना, क्योंकि उसको तो एडहेसिव से दिक्कत है। तो जो मैं ड्रेसिंग लेकर आई हूँ उसको मैंने क्या किया, नीचे से निकाली ड्रेसिंग, ऐसे ओपन करी और डाल दी कहाँ पे? स्ट्राइल फील्ड में। ओके, सो यू कैन सी, वी कैन, यहाँ पे ड्रेसिंग नहीं है, इस सेट में ड्रेसिंग नहीं दिख रही है, बट यहाँ पर आप ड्रेसिंग रख देते हैं। ऑल डन, गुड टू गो। नाउ अगेन हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन, नाउ व्हाट? टेक योर 2 ब्लू फोर्सेप्स। अब आप क्या लेंगे? अपने 2 फोर्सेप्स लेंगे, ग्रिप बनाएंगे अच्छे से। और गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग, हैंड हाइजीन असली में नहीं करनी है, ये प्लास्टिक के हैं। और अगर आपने रियलिटी में हैंड हाइजीन करी इन इन रियल सिनेरियो, तो आपके हाथ ऐसे फिसलेंगे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो आपने क्या करना है, बस ऐसा छोटा सा ऐसा स्कूप सा बनाना है और ऐसा दिखाना है कि मैंने हैंड हाइजीन कर ली, ऐसा लेना है, हैंड हाइजीन। लेकिन हैंड हाइजीन कर नहीं रही हूं मैं, बस दिखा रही हूँ। पहली बार कर ली थी अच्छे से मैंने, अब मैं बार बार नहीं कर रही हूँ, पर दिखा रही हूँ मैं कि कर रही हूँ। क्योंकि इतनी बार मैं हैंड हाइजीन करूंगी तो ये तो मेरे फिसलते चले जाएंगे सारा का सारा सामान। सो आई विल नॉट डू दैट। मैंने काफी पैसे पे किए इसके लिए, तो मैं नहीं करने वाली ये चीज। सो फोर्सेप्स की होल्ड किया, ये ग्रिप देख रहे हैं आप, शायद ये ग्रिप देख पा रहे होंगे आप। सो दीज आर ग्रिप्स, तो ये देख सकते हो, लेट मी शो यू। So these are the grips. Okay, so you will hold these grips. Okay, hold these grips. Now एक कॉटन बॉल उठाया, कहां से उठाया? ये दिख रहा है। सो एक कॉटन बॉल उठाया, पानी में डिप किया, स्क्वीज किया, रख दिया। एक यहां से उठाया, सॉरी इधर तो है ही नहीं, है ना, यहां से उठाया, यहां से उठाया, यानी कि ओके लेट मी शो यू। मैंने यहां से उठाया, यहां से एक उठाया और मैंने कहा डाल दिया? ट्रे में डाल दिया, पानी में डाल दिया, स्क्वीज किया, साइड में रख दिया। साइड में कहां पे रख दिया? यहाँ पे रख दिया। Okay, so you can see we have 2 type of things. So one there will be, and now you are dipping it into the water, and now what you're doing, you are just putting it here after squeezing it into the water. And ऐसा ये normal सा line, squeeze, squeeze, and then put it in front of you. Again, take it, dip it, squeeze it, put it, take it, dip it, squeeze it and put it. अब ये दोनों हाथ स्ट्राइल हैं, लेकिन मरीज तो मेरा वहां पे है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो मरीज के पास जाना है, और अगर मैं पेशेंट के पास चली गई, मेरा हाथ चला गया, तो वापस तो इस फील्ड में आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो स्ट्राइल फील्ड है। अब एक काम करती हूँ, एक कॉटन बॉल उठाती हूँ और इस हाथ को ले जाती हूँ मरीज के पास, क्लीन किया, फेंक दिया। अब इसी हाथ से उठाऊंगी और बिल्कुल एज पे लेके चली जाऊंगी। किसके एज पे? इसके एज पे, इतना इतना एरिया। यहां पर आप लोगों को क्या करना है? क्रिस क्रॉस करना है। इसके अंदर मेरा गंदा हाथ नहीं आना चाहिए। दिस इज अ स्ट्राइल फील्ड। So what I will do, my another hand will come till here and my this hand will come till here. Here will be the exchange at the end. So what I will do, these are my 2 squeezings. Just give me a second please. Okay, so this is the one and okay, so मैंने यहां से लिया, अब मैं इसको लेके चली गई, squeeze and discard. Now next मैंने उठाया, अब यहां लेके गई एंड पे, और यहां से लेके वापस हाथ वहीं रख दिया, क्लीन इट। नाउ डिस्कार्ड अगेन, इस हाथ से उठाया, लेके गई वहां पर, लाइक चेंज एंड देन पुट इट देयर एंड क्लीन इट, फिनिश। इज इट क्लियर एवरीवन? यस हिमांशु, राजविंदर,
नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या करना है? सो मैंने इन्हें स्क्वीज करके यहाँ रख दिया, यहाँ सब हो गया। अब ये हाथ तो अंदर आ ही नहीं सकता है, तो ये बाहर ही है, लेकिन मेरी ड्रेसिंग तो हो गई, मतलब क्लीन तो मैंने कर दिया। अब तो मुझे बस ड्रेसिंग उठा के स्टाइल फील्ड से उठा के चिपकानी है। तो मैंने इस हाथ को कर दिया, इसको कर दिया मैंने डिस्कार्ड। So this is discard. My hand is here. I took this hand is already in the style field. So मैंने यहाँ से गॉज पीस उठाया और उसके ऊपर रख दिया। अब तो मैं बाहर आ गई। हाँ, तो अब मुझे करना भी क्या, सारा प्रोसीजर डन है, खत्म है। इसको भी डिस्कार्ड कर दो। हैंड हाइजीन करो, नीचे से बैंडेज उठाओ, लगाना चालू कर दो। Is it clear? Okay, now let me do it one more time. So I'm closing the door to maintain the privacy. I can see the scene is safe to proceed. Hi, my name is Vishali. I'm just a nurse looking after you. How are you? I'm fine, nurse. Thank you so much. Yeah, I've seen in your file that you're having wound, right? But you're feeling fine. That's really glad to see hear you. But basically, the reason why I'm here, I need to I need to change your dressing. That's why I'm here. So before that, let me tell you. If you feel pain throughout the procedure, please let me know. I will stop the procedure. Is that okay to you? All right. So before doing anything, I need to check your ID. Let me go and grab the file of yours. Okay. So can you please confirm your name? Okay. Your date of birth? Okay. Your MR number is no. Okay. Do you have any allergies? Yeah, I'm allergic to peanuts. Okay. We'll make sure that we will not give you peanut during your stay. All right. Okay. So I'm just next to you, collecting my articles. Then I'll be right back. I hope it is okay to you, right? Okay. So now I'm going. No, मैं पहुंच चुकी हूँ preparation area में. So my trolley is neat and clean with soap and water in the last 24 hours. I'm happy to proceed with this trolley. Okay, trolley is here. अब articles डाले, dressing set डाला, normal saline डाला, आपने bluey डाल दी, आपने bin देखा, side में चिपका हुआ bin. Okay, perfect. Okay, now what I'm going to do, I will just take this trolley and we'll go to the patient's bed. Hi, Samantha, I'm back with my trolley. This trolley is trial for me, so I will not talk, okay? But you can talk, you can tell me if you feel pain. I will stop the procedure, okay? And so let me have a look of your wound. Can you please show me your wound? I can see your wound is pretty big. It has some drainage, serosanguinous drainage. It's a mixture of blood and normal, fluid. And other than that, I'm not able to see any undermining or tunneling, okay? There's no ishihar or any slough over there. This wound is epithelialized. This is in the phase of granulization, means it's healing. That's good. So I will clean your wound, and then after I will have better understanding. I hope it is okay to you. Yeah. So I'm going to start it. Okay. So let me spread this bluey under your legs. Okay. Opening the dressing set. Doing my hand hygiene because I have seen the yellow forceps. येलो फोर्सेप, ब्लू फोर्सेप सबसे पहले जो सफेद रंग का टॉवल है इसे साइड में किया है मैंने. ओके, सो सबसे पहले व्हाइट कलर वाला मैंने साइड में किया है, फिर मैंने ब्लू कलर का फोर्सेप साइड में किया, दूसरा साइड में किया, गॉज पीसेस 3 निकाल के रख दिए, बचे हुए साइड में है, तो गुड. डिस्कार्डिंग इट इन द बिन. डूइंग हैंड हाइजीन, टेकिंग द ड्रेसिंग, पुटिंग इट इन द ट्रे, मतलब in the trolley, on the trolley. Hand hygiene, taking the NS, opening it, pouring it in this area, this area. Okay, next, hand hygiene, taking 2 blue forceps. Okay, so I'm taking 2 blue forceps. Take a deep breath. Starting it, taking 1 gauge, dipping it in the NS, squeezing it, putting it at the left. Taking another gauge, dipping it, squeezing it. Taking gauze, dipping it in the NS, squeezing it, putting it. Take another deep breath. 1 gauze, patient bedside, discard. Then take, cross at the end in last part, not outside. वापस रखना है. थर्ड वन, वापस हाथ रख दो, वहीं पे खड़ा रखना है, वरना ऐसे से डोलता फिरेगा हाथ, तो वहीं पे रख दीजिए. क्लीनिंग इट. एंड दिस वन डिस्कार्डिंग. नेक्स्ट, नाउ ड्रेसिंग उठानी है. ओके, सो कैन यू प्लीज होल्ड दिस ड्रेसिंग फॉर मी. ऊपर से, अंदर से तो होल्ड नहीं कर रही, ऊपर से कर रही है, और ऊपर से करने का मतलब है कि मुझे ड्रेसिंग भी तो लगाना है ना पेशेंट को, तो ये उसने रख दिया. कैन यू प्लीज होल्ड दिस फॉर मी, कहीं गिर ना जाए, वरना सारा किए किराए पे पानी फिर जाएगा.
ओके, तब तक आपने क्या निकाली, बैंडेज। ओके, सो आई एम डन विद योर ड्रेसिंग। ओके, प्लीज इसको रैप अप कर रही हूँ। सो प्लीज मेक श्योर यू डोंट वेट योर ड्रेसिंग। ओके, whenever you want to go to washroom, please let me know. I will give you assistance. And if you feel your dressing is wet, you need to we need to change that dressing. So please inform us if your dressing is wet. I need to update your wound chart. I will do that. And please have some high nutritious diet, for example onions, garlic, because these are antioxidants and they will help you to heal your wound. Other than that, I can refer you to the nutritionist so that she can create a good nutritious balanced diet for you with with high amount of protein for your wound healing. And I will share all the findings of your wound assessment with the physician, so that if they want any further investigations or any follow-ups, I can follow them. Is that okay to you? Do you have any concerns before I go? No, that's fine. Doing my hand hygiene and going and standing over there. आई होप दिस स्टेशन इज क्लियर नाउ। अब गाइज आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन जस्ट गिव मी अ सेकेंड, उससे पहले मैं आपको एक बार थोड़ा रिटर्न बता देती हूँ। ओके, सो एंटिटी, ओके, ओके, सो गाइज प्लीज हैव अ लुक, यू कैन क्रिएट योर ओन नोट्स, आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं इसके हिसाब से। सो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, आप डोर को क्लोज कर रहे हैं। ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या okay, so you can read the data. It's written like I'm closing the door. So आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आप डोर को क्लोज कर रहे हैं। ओके, सो यू आर क्लोजिंग द डोर टू मेंटेन द प्राइवेसी। आई कैन सी द सीन इज सेफ टू प्रोसीड। हाय, माय नेम इज विशाली, आई एम जस्ट नर्स लुकिंग आफ्टर यू। एक्नॉलेज करना है ना। ओके, सो आई एम जस्ट नर्स लुकिंग आफ्टर यू, हाउ आर यू? आई एम गुड। अगर उसने बोल दिया गुड, मूव फॉरवर्ड, चेक द आईडी। अदरवाइज आप देख सकते हैं, बोलना है if the patient is saying not fine, if the patient is saying I'm not fine, then what all you need to do, you have to say I have, patient is saying I have pain, can you please locate your pain for me? द पेन, जो हमने पेन स्केल पढ़ा है, आप सबको मालूम है कि जब भी हम किसी का पेन स्केल पढ़ते हैं तो पूछते हैं आपको कहाँ दर्द हो रहा है, 0 बीइंग द लोएस्ट, 10 बीइंग द हाईएस्ट, आप रेट करके दिखाइए। ये सब डाटा हम लर्न करते हैं, बट जब बोलने की बारी आती है तो हम सारा कुछ नहीं बोल सकते, हम वही बोल सकते हैं जो उस टाइम पे वैलिड है। अगर उसने बोला मैं ठीक हूँ तो ठीक है, खत्म बात, राइट? बट इफ पेशेंट सेज आई एम नॉट फाइन, देन यू कैन आस्क कैन यू प्लीज लोकेट योर पेन फॉर मी? ओह, आई कैन सी इट्स अ वुंड हियर, let me assess it, let me uncover this. So you will assess the wound. I can see the wound is that जो भी मैंने आपको सिखाया वो सब बोलना है। Can you please rate your pain for me, 0 being the lowest, 10 being the highest? The patient will tell me I have like a lot of pain, it's like 5 or whatever. सो हम बोल सकते हैं कि फिर उसके बाद हमें पूछना कि क्या आपने दवाई खाई है क्या, क्योंकि हमेशा वूंड वूंड असेसमेंट करने से पहले पेशेंट को प्री मेडिकेशन देना होता है। तो हम पूछ रहे हैं कि आपने दवाई खाई है, वो पेशेंट बोल रहा है हाँ मैंने खाई है। अगर उसने बोला नहीं मैंने नहीं खाई है, तो आप दवाई तो खिला नहीं सकते उसको अभी, क्योंकि दैट इज नॉट अ वूंड स्टेशन, राइट? इट्स नॉट अ मेडिकेशन स्टेशन, सो यू नीड टू परफॉर्म सम वूंड असेसमेंट, राइट? You came there over for the wound assessment, not for the medications. So you have to tell them okay, then take deep breath, you're gonna feel much better. Okay, now I will change your dressing, that will reduce infection and pain too. तो यहाँ पर मैंने ये बोल दिया है कि अगर मैं आपकी ड्रेसिंग को बदलती हूँ तो ऑटोमेटिकली आपकी जो दर्द है वो कम हो जाएगी। तो मैं दवाई का जिक्र नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो मैं दे ही नहीं सकती हूँ, बट मैं क्या रैशनल दे रही हूँ कि मैं अगर आपकी ड्रेसिंग चेंज करूंगी तो आपको काफी बेटर फील होगा, आपका जो दर्द है वो काफी कम हो जाएगा। So guys, remember this thing. If I'm going approaching the patient is saying I'm having pain, then what you can do, you can tell them, oh I'm so sorry for that, can you please locate it for me? Oh, I can see there is a wound. Okay, so can you please take deep breath for me? And don't worry, I will change the dressing, that's why I'm here, and you're gonna much better, you're gonna feel much better after after your, when once I will change the dressing, you're gonna feel much better. एंड ऑन द अदर हैंड इफ पेशेंट सेड यस मैंने अभी भी दवाई खाई है, तो आपको क्या बोलना है, इट विल टेक सम टाइम, ओके, टू वर्क द मेडिकेशन, देन यू गोना फील बेटर। ओके, आई होप इट इज ओके।
ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन गाइस देन। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो जहाँ पे मैंने टिक लगाया हुआ है, एग्जामिनर यहाँ पे बैठी हुई है और आपका पेशेंट यहाँ पर है, और जो जो ये सेंटर पे जो वूंड है, let me show you. So guys, you can see here, here is the examiner, okay, and there is a patient and here is the wound. ये आपकी ट्रॉली है। तो गाइस, ट्रॉली का जो फेस है वो हमेशा वूंड के सामने होना चाहिए, और यहाँ पर आप खड़े हैं ताकि आप क्या कर रहे हो, ताकि आप जो कर रहे हैं वो ये एग्जामिनर देख पा रही है। तो आपको एग्जामिनर की तरफ पीठ करके नहीं खड़े होना है, आपको एग्जामिनर की तरफ फेस करना है, और एग्जामिनर उसी ही हिसाब से होती है, आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, because mostly the examiners and the patient will be in such position, it means so that she can say, so that she can see you very nicely, okay। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। what do you think, is this pain unbearable? ये नहीं बोलना है फालतू की बातें। क्लिनिक, सो बिफोर डूइंग एनीथिंग कैन यू प्लीज टेल मी योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ? तो हम उसकी आईडी चेक करेंगे। डू यू हैव एनी एलर्जीज? ओके, वेल नाउ आई विल कलेक्ट आर्टिकल्स एंड विल कम बैक, बट प्लीज डोंट गेट ऑफ फ्रॉम द बेड ऑल अलोन, योर सेफ्टी इज माय प्रायोरिटी। यू नीड एनीथिंग प्लीज कॉल मी, आई एम नेक्स्ट टू यू। हैंड हाइजीन एंड देन लीव। अब आप आ जाते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन एरिया में, और प्रिपरेशन एरिया में आप आर्टिकल्स लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ड्रेसिंग सेट लेना है, ब्लू लेना है, एनएस लेना है और ड्रेसिंग लेना है। जो ड्रेसिंग है वो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार की होती है। जो एडेसिव जो चिपक रही है, जिसमें आपको बैंडेज की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो प्राइमरी हो गई। और जिसमें आप ऐसा, जैसा ये दिखा रही हूँ मैं, जैसे आपको आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल दिस थिंग, यू नो दिस थिंग, सो दिस इज समथिंग विच इज नॉट एडेसिव, राइट? सो यू नीड समथिंग एल्स टू बाइंड इट अप। तो आप इस्तेमाल करने वाले बैंडेज, तो दैट्स व्हाई दिस इज योर प्राइमरी ड्रेसिंग एंड द सेकेंडरी इज योर बैंडेज, ओके। एंड सो दिस इज योर सेकेंडरी। व्हाट इज प्राइमरी? प्राइमरी इज एडहेसिव्स, जो सीधे चिपक जाते हैं। तो जो भी आपकी ड्रेसिंग है वो आप चुनिए, यूज कीजिए। और जो बैग लगा हुआ है इस ट्रॉली के साइड में, वो देखना है बैग लगा है कि नहीं लगा है। अगर नहीं लगा तो आपको लगाना पड़ेगा, वो बैग वहीं पे ही आपको पड़ा हुआ मिलेगा, आप लगा सकते हैं। पर ज्यादातर टाइम बचाने के लिए जो एग्जामिनर्स हैं, दे ऑलवेज पुट बैग जस्ट नेक्स्ट द ट्रॉली, सो डोंट वरी अबाउट दैट। Then after come back, hi, I'm back with my articles, you okay? All right, well, if you feel pain, अगर आपको दर्द होता है, please let me know, okay? So well, if you feel pain throughout the procedure, please let me know, okay? I will stop the procedure, मैं जो procedure है वो stop कर दूंगी, and I will refrain myself from talking, मैं बात नहीं कर सकती हूँ, okay, from talking, but you can, but आप बात कर सकते हैं। तो अगर आपको दर्द होता है तो आप प्लीज मुझे बता देना। देन आफ्टर गाइज वही सब करना है, हैंड हाइजीन करना है, ड्रेसिंग सेट को खोलना है, फिर से हैंड हाइजीन करना है, फिर येलो फोर्सअप निकालना है, फिर अरेंज करने हैं आर्टिकल, फिर नॉर्मल सलाइन डालना है, फिर ड्रेसिंग डालनी है, फिर से हैंड हाइजीन करनी है, फिर ब्लू फोर्सअप उठाने हैं, और अपना काम जो करने आए हो वो चालू कर देना है। उसके बाद वेल यू अब बात करना चालू कर सकते हैं। वाई? बिकॉज यू ऑलरेडी अप्लाइड द प्राइमरी ड्रेसिंग, द सेकेंडरी ड्रेसिंग, जो भी ड्रेसिंग थी वो आप अप्लाई कर चुके हो। अब क्या करना है? वेल योर वुंड, आई एज आई मेंशन्ड अर्लियर, इट वाज दिस एंड दैट, ये हमें पहले ही कर देना, क्योंकि गाइस क्या हुआ था, ज्यादातर हमें वक्त ही नहीं बचता है कि एग्जाम, हमें टाइम नहीं बच पाता है असेसमेंट करने के लिए, और अलग से असेसमेंट करना, अलग से मैनेजमेंट बोलना, इट्स टू मच, राइट? तो हमने टाइम को सेव करने के लिए क्या किया, हमने असेसमेंट पहले कर ली। या तो स्टार्टिंग में ही कर दीजिए ताकि आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग हो जाए, या फिर जब आप पेशेंट से बात कर रहे हो, बैंडेज बांध रहे हो, आप तब भी बोल सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसीजर यू कैन नॉट स्पीक, ड्यूरिंग द क्लीनिंग ऑफ द वुंड यू कैन नॉट स्पीक। सो आइदर यू नीड टू स्पीक बिफोर और आइदर यू नीड टू स्पीक आफ्टर। बट आफ्टर के कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं कि अगर गलती से आप बहुत धीरे कर रहे हो या आपको डर लग रहा है, तो आपका तो असेसमेंट के 0 मार्क्स मिलने वाले, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं बचा। इसीलिए हम लोग पहले ही 2-4 लाइनें जल्दी से बोल देते ताकि एग्जामिनर हमारे असेसमेंट के मार्क्स ना काटे। तो हमने पहले असेस किया, फिर हमने ड्रेसिंग सेट खोला, फिर हमने उसको बोला कि मैं और बेटर बताऊंगी तुमको जब मैं क्लीन कर लूंगी, बट मैं बता चुकी हूँ फिर भी, तो शी विल नॉट डिडक्ट माई मार्क्स। लेकिन अगर मैंने एक शब्द भी नहीं बोला है और मैं बस ड्रेसिंग कर रही हूँ, और देन आफ्टर मैं सोच रही हूँ कि मैं बाद में करूंगी, और टाइम बेल बज गई, खत्म, फिनिश, राइट? सो इसीलिए पहले आप असेस करके आएंगे, थोड़ा ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा, जो मैंने वर्ड्स बताए वो बोल के आने हैं आपको। फिर आप अपना ड्रेसिंग करेंगे। ड्रेसिंग करने के बाद आपने क्या बोलना है? ड्रेसिंग के बाद आप बोलेंगे, डोंट वेट योर ड्रेसिंग, please have some high protein diet, okay? I will refer you to the nutritionist. She will create a good balanced nutrition diet for you, which will be high in protein. Assist to go to bathroom. If you need any assistance, if you want to get off from the bed, if you want to go to washroom, please let me know. I will go with you, okay? And
रीच ऑल आर्टिकल्स नियर यू। हाँ, मतलब सारे के सारे जो आर्टिकल्स है वो आपको वहीं पे रखने, ये नहीं आप उनको सजाने लग जाए या फिर उनको डिस्कार्ड करने लग जाओ। आपको बोलना आई विल डिस्कार्ड देम लेटर। आप प्लीज अनियन खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, ये एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड विल अपडेट योर वोन चार्ट, शेयर ऑल द फाइंडिंग विद द फिजिशियन, आई विल शेयर ऑल द फाइंडिंग्स विद द फिजिशियन एंड डू योर हैंड हाइजीन एंड कम बैक, दैट्स इट गाइस। और आपको क्या करना है, वापस आना है। आप देख सकते हो ये जो ड्रेसिंग, आप ये जो वूंड है आपके सामने जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये एक प्रकार का कॉन्ट्यूजन है। ओके, एंड कॉन्ट्यूजन में आप नॉर्मली क्लीन करोगे वुंड को, इससे कोई ड्रेनेज तो आ नहीं रहा है, तो ड्रेसिंग क्या लगा सकते हो आप, नॉर्मल टेगाडर्म लगा सकते हो, टेगाडर्म, नॉर्मली टेगाडर्म आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, आप इसे मेजर भी कर सकते हैं, यू नो, पर हम लोग नहीं करते, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता मेजर करने का, तो वो लोग सिनेरियो में ही लिख देते हैं पेरीवुड एरिया इज 3 × 2 सेंटीमीटर, यू नो, दे ऑलरेडी मेंशन दिस थिंग्स। अब आप देख सकते हो यहाँ ड्रेसिंग के बारे में जरा देख, नजर नजर डाल लीजिए, जस्ट गिव मी सेकंड, लेट मी क्लीन इट फर्स्ट। सो ड्रेसिंग आप देख सकते हैं, दिस इज बेसिकली, जस्ट गिव मी सेकंड प्लीज। ओके, सो सो दिस ड्रेसिंग, दिस इज टेगाडर्म, इसे हम टेगाडर्म बोलते हैं। ओके, दिस इज बेसिकली टेगाडर्म। एंड ये आप देख सकते हो, दिस इज गॉज पैड, दिस इज गॉज पैड, 20 × 20 सेंटीमीटर का गॉज पैड होता है। दिस इज मैपिलैक्स, दिस इज मैपिलैक्स। ओके, एंड दिस इज पैराफिन गॉज, पैराफिन गॉज। So, okay. The next we have this dressing. This is gauze pad. This is gauze pad. Okay, tegaderm, tegaderm. This is tegaderm, micropore, and these are paraffin gauze. This is normal dressing, gauze. You know, tegaderm, normal gauze. एंड दिस इज योर मैप्लेक्स, दिस इज मैप्लेक्स टाइप 2। ये जो मैप्लेक्स है इसके साइड के एंड देखो कितने सॉफ्ट है, तो मतलब ये एडेसिव नहीं है, चिपकेगा नहीं है, इसके ऊपर आपको कुछ और चिपकाना पड़ेगा, जबकि ये मैप्लेक्स जो होता है इसे आप बहुत आराम से चिपका सकते हैं किसी भी चीज के साथ। देन नॉर्मल गॉज, दिस इज पैराफिन गॉज 1 and 2, दिस बोथ आर पैराफिन गॉजेस। आप पैराफिन का मतलब क्या होता है, वैसोलिन, मतलब कि इसमें कुछ इमोलेंट डाले होते हैं सॉफ्ट करने के लिए, ताकि वो चिपक के बाहर ना आए। एंड दिस इज सिलिकॉन ड्रेसिंग, बहुत कॉस्टली होती है, इसे मैपिलेक्स बोलते हैं हम लोग, सिलिकॉन ड्रेसिंग। एंड दिस इज योर टेगाडर्म, दिस इज ऑक्लूसिव एडेसिव, इससे साफ साफ दिखता है अंदर क्या है बाहर क्या है। वी ऑल हैव दिस काइंड ऑफ ड्रेसिंग, सो डोंट वरी, व्हेन यू विल कम हियर, जब आप यहाँ प्रैक्टिस के लिए आएंगे तो हम आपको इन ड्रेसिंग्स को आपको परफॉर्म करने, जब आपकी असेसमेंट्स होंगे तब आप परफॉर्म करेंगे इन ड्रेसिंग सेट्स को यूज करके, सो डोंट वरी। Now, guys, anyone has any question or any doubt, you can ask me. But before that, let me stop the recording.